start our today's class. As you know that in previous class we already discussed about some guiding values of the Constitution. What are the guiding values that inspired the Constitution? The leaders, they wrote the Constitution. Those values, we can say that it is included in our preamble. And that's why a number of leaders were there who not only inspired through their speeches, and they also worked for the people, for the nation. We already discussed like the role of Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, and what was the dream of theirs, that what type of constitution would be adopted in India. It was they declared, it was expressed by them through their speeches. So what are these we can say guiding or values that guide the Constitution? Today we will discuss. So what is the philosophy of the Constitution? What do you mean by the word here, philosophy? Philosophy, it means the values that included in our Constitution, that inspired the Constitution. And through this Constitution, you know, it empowered the government to work for the nation, to work for the people. This is the values, what I talk about it, that inspire. What are these values? These are called the core values. core values कौन सी होती हैं? वो values जिनका हम कहें कि उन values के ऊपर ही किसी भी चीज का structure बनता है. उस structure की बात कर रहे हैं, वो structure क्या है? वो values कौन सी हैं? वो structure है हमारा constitution. और वो values क्या है? उसकी बात अब आज हम करेंगे. That values that inspired and guided the constitution according to the will of the people, aspirations of the people. Because at the time the constitution was written, they had in mind that the people participation is very necessary for the success of democracy. अगर देश में लोकतंत्र बनाना है, उस सिस्टम को प्रॉपर चलाना है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना ही नेसेसरी है. अब जो ये बात मैं कहने जा रही हूँ, इसको हम आगे बताऊंगी कि कैसे हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने रोल प्ले किया. आप और मैं ये सोच सकते हैं कि अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो हम थे ही नहीं, तो हमने कैसे रोल प्ले किया? हमने नहीं किया, लेकिन जो हमारे उस समय लोग थे, the people they were present at that time, they play a very significant role. So these values and principles they guided, and not only they guided not only for the writing of constitution, but they inspired for the freedom struggle also. Now there is a mystery here. What are these values? This I discuss after some time. What are these values that not only inspired the constitution but also the freedom struggle, the leaders, the freedom fighters who fought for the nation, for the freedom of the nation? These values. So, and it also just gave the basic idea for the foundation of India's democracy. ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसकी हम बात करे जा रहे हैं? हमारे लोकतंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी का वो बेस बना. भारत का लोकतंत्र कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका बेस भी इन्हीं वैल्यूज ने दिया, इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ने दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और इतने सालों पहले लिखे हैं. मैंने कल ही आपसे बात की थी, इतने साल पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50 इयर्स अबाउट, हम कह सकते हैं टाइम हो गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हुए, फिर भी आज हम उसको फॉलो किए. ऐसे उसमें क्या वैल्यूज है जो वो वैल्यूज नहीं बदली टाइम के साथ. लोग बदल गए, टाइम कंडीशंस बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गई, देश की स्थिति चेंज हो गई, फिर भी वो वैल्यूज आज तक और उसी को फॉलो की. अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमने ये देखा ये वर्ल्ड जो है, दुनिया इतने सालों से बनी है और हर कंट्री को हम देख रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर ग्लोबली कनेक्टेड. किसी देश में क्या हो रहा है, वी नाउ वेरी इजिली नो, इवन इन सिटिंग एट आवर होम.
इन आवर होम, बैठे बैठे घर पे भी हम पता लगा सकते हैं किसी देश में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर ग्लोबली कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ यू टेल मी कि जो चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, सम वैल्यूज दीज आर टॉट बाय आवर पेरेंट्स, एल्डर्स, उनके भी पेरेंट्स एल्डर्स ने वो चीजें सिखाई, क्या वो बदली आज तक? वो वैल्यूज क्या है? ऑनेस्टी, ट्रुथ, बी लॉयल, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें हमारी यूं कहा जाए कि एक पर्सनालिटी को बनाने में, हमारे एक वजूद को, हमारे एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। वी आर ह्यूमन बीइंग बिकॉज वी हैव दीज क्वालिटीज एंड फीचर्स। क्या ये वैल्यूज बदले? समाज बदल गया, जनरेशन टू जनरेशन फैमिली चेंज हो गई, लोग बदल गए, लेकिन हमारी वैल्यूज वही है, वही सिखाए जाए। आज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, हम उन्हें भी वही सिखाएंगे, और आज जो जनरेशन है उसे भी वही सिखा रहे हैं। That's why these values which were comprised in our constitution at that time, still the government followed, the people followed, and it has inspired our freedom leaders to struggle. These values, where these values are embedded, these values are embedded in the preamble. आज उसी की बात करने जा रहे हैं। What do you mean by preamble in हिंदी? हिंदी में क्या कहते हैं? इसका वर्ड मीनिंग क्या है? प्रस्तावना। चलिए आप मुझे बात बताइए कि अगर आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और अगर उसका नेम प्लेट पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है ये इसका घर है, ठीक है, आइडिया हो जाता है। प्रेम्बल वही है जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हो जाएगा कि प्रेम्बल में क्या है, ठीक है। प्रेम्बल इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट of the constitution. In another language we can say that introductory document of basic values of a constitution. It contains the philosophy on which the entire constitution is based. तभी तो preamble को क्या कहा है? आत्मा, the soul of constitution. preamble क्या है? the soul of constitution, because only I think half page is there. प्रेम्बल आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप देखें उसको। उस प्रेम्बल में कितनी लाइंस है, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमें मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। क्या हम पढ़ सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को? नहीं पढ़ सकते। अगर शायद हमारा कोई सब्जेक्ट है या हमारे पे कोई कंपल्शन होगा तब तो हम उसको जो है हमें पढ़ना ही होगा, अदरवाइज we should have an idea about our constitution, and this idea is given by only reading the preamble. Preamble, that's why it is the document of basic values. What are these values? What I am talking about, all those values that inspired the people, that inspired the constitution. It is embedded in preamble. And you should also know about that this preamble idea is also driven from American model, because सबसे पहले जो सिविल राइट्स जो जिसकी बात कर रहे हैं, बिल जो आया था वो अमेरिका में आया था। जो राइट्स दिए गए थे, सिविल राइट्स का मतलब है जो नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, द पीपल ऑफ दोज दैट कंट्री, द राइट्स विच आर गिवन टू देम, it is in Bill of Rights. And the first of all, this preamble is included in American bill, we can say Bill of Rights. And after that, धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने इसको preamble को अपनी एक जिसको कहते हैं ना एक ट्रेडिशन बना लिया। सबने जिनके भी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज के हमने देखा, साउथ अफ्रीका का देखा, सब कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डिपेंड्स कि वो किस तरह से है। तो वहां पर एक प्रेम्बल की प्रथा चला दी, एक ट्रेडिशन चला दिया कि जो फर्स्ट होगा वो प्रेम्बल होगा, और उसमें उसकी गाइडिंग वैल्यूज और जो है यूं कहा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडल्स लिखे हुए होंगे। और हम अपने देश की बात करें तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इट डिपेंड्स ऑन इट। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे प्रेम्बल पे ही है। केवल आप भारत का प्रेम्बल पढ़ लें या साउथ अफ्रीका का प्रेम्बल दे रखा है, आप जरूर पढ़ें साउथ अफ्रीका का प्रेम्बल, तो आपको सबसे पहले तो ये फर्क नजर आएगा कि इंडिया के प्रेम्बल में और साउथ अफ्रीका के प्रेम्बल में क्या करके, क्योंकि प्रेम्बल के अंदर, साउथ अफ्रीका के प्रेम्बल में कुछ
राइट्स को भी बताया गया है, कुछ ग्लोरियस पास्ट को भी लिखा गया है, जबकि हमारे ऐसा नहीं है, उसमें फर्क है। तो आप जरूर एक बार एक रीडिंग जरूर लगाएं ताकि आपको जो है डिफरेंस भी समझ में आएगा। बट वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल्सो, एंड व्हाट इज द गाइडिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आर देयर नाउ आई विल डिस्कस। This is the preamble. I told you the introductory part of the constitution, and some these principles, these values are written there. It is on, I think, in page number, on your page number in your book 50 और 51. जो sides में आपके जो दे रखे हैं boxes में, वो आपके preamble के principles हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं we are the people। प्रेम्बल में स्टार्टिंग किससे हुई है? वी आर द पीपल, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमने बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के एफर्ट से बना है। इट इज नॉट गिवन बाय एनी पर्सन, एनी गॉड। कोई भगवान ने आके हमें हमारा संविधान नहीं दिया। इट इज रिटन बाय ऑल द एफर्ट्स ऑफ द लीडर्स थ्रू देयर इंटेलेक्चुअल एंड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। That's why it is written we are the people. I told you कि हम और आप जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हमारे जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय क्रेडिबल पीपल, जिन पे हमारा फेथ था। वो क्रेडिबल पीपल थे, उन्होंने हमारा संविधान लिखा। That's why it is written we are the people. And second thing is sovereign. What is the second guiding value is sovereign. बेटा हर वर्ड का हमें मतलब समझ में आएगा। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो एक पोएम की तरह चल रहा है। वी आर द पीपल, सॉवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इस तरह से पूरी पोएम चल रही है। सॉवरेन का मतलब बच्चों क्या होता है? दैट वी आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। कि अब कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, हमारी कंट्री से रिलेटेड, हमारी कंट्री से कोई भी मतलब वॉर से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है, वो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी डिसीजन लेना होगा वो अब हमारे पास पार है। क्योंकि हमने ये क्यों लिखा है? एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, द होल द डिसीजंस, ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय देम। दैट्स व्हाई सॉवरेन इज हियर नाउ। वी आर sovereign, we are free, we have the right to take decision internal and external matter of our nation. This is called the sovereign. Socialist, this idea we take from we can say that Russian Revolution was there. There was a Russian revolution because of the social जो revolution socialism के लिए हुआ था। This idea we take from them. What is the socialism here? You have to understand the literal meaning of socialism is समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद ये कहता है कि कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ है, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी समाज के सभी लोगों को सब तरह से समान अधिकार होना चाहिए। अब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में क्या है? समाज में अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। ये सारी चीजें जो है इक्वली जो है लोगों को मिलनी चाहिए। उस समाजवाद की बात करते हैं जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल है। और इसी समाजवाद को फॉलो करते हुए हमने अनटचेबिलिटी जो पॉलिसी, इट वाज टोटली अबॉलिश्ड, पूरी तरह से हटा दी। ये है समाजवाद। सेकुलर, I know that you have an idea about secularism, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या भारत का कोई ऑफिशियल धर्म है? क्या कोई हमारी गवर्नमेंट कोई स्पेशल रिलीजन को पढ़ाने पर जोर देती है? क्या वो ये कहती है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में या मंदिरों में, मस्जिदों में ये ही पढ़ाया जाए? क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन की हम बात करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब की बात की जाती, क्योंकि वो उनकी होली बुक है। वो उनकी टीचिंग्स क्या क्या है वो सिखों को समझाई जाती।
मदरसों में हम देखते हैं कि कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि बच्चों को किस तरह से रहना है, कुरान जो है उनकी उनमें क्या प्रिंसिपल्स हैं वो सिखा। इसमें कोई भी, हमारे हिंदू धर्म जो है उसमें भी हमें ये सिखाया जाता है जो स्क्रिप्चर्स हैं, बट कहीं भी रिलीजन की शिक्षा नहीं दी जाती स्कूलों कॉलेजों में, या फिर कोई ऐसा यूं कहा जाए कि स्पेशल जो, हाँ ठीक है। अब आपको इसकी सेकंड चीज और बताऊंगी मैं कि सेकुलरिज्म यहाँ पर अगर हम समझे तो ओवरऑल मतलब क्या हो गया, इफ देयर इज द इन इंडिया स्पेशली देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, all the people they can follow their religion equally, they can profess, they can propagate their religion without any discrimination. सबको अधिकार है अपने धर्म को पालना करने का, उससे प्रोग्रेस करने का, उसको प्रोपिगेट करने का, बस हमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। स्कूलों में कहीं पर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, सारे धर्मों को समान समझकर ही पढ़ाया जाता है। दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जरूर, आप जो सेकेंड आपको मैं कंडीशन बता रही हूँ कि हमने देखा है कि हमारी कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल भी रहते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल मीन इन देयर नंबर में वो माइनॉरिटी है। उस कंडीशन में अगर वो अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी उनको एड देती है, देयर इज अ आर्टिकल, तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं। बट अगर हम ये कह दें कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा होता कि ये, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजोरिटी हिंदू धर्म की, कि केवल हिंदू धर्म को ही मानना है, तब ये सेकुलरिज्म नहीं होता। बट इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। डेमोक्रेटिक क्या होता है बच्चों? What do you mean by democratic? We always talk about that India is a democratic country. What it means that in India, all the people have equal political rights. They form the government. How we form the government? Through the choosing the candidate. It is called the representative government. There is no, we can say, any inequality in this. All the section of the people, they have the right to cast their vote, who attain the age of 18 and above. Even they enjoy other rights also. What are these rights? Like I told you that some rights are also written in our constitution, like right to equality, right to freedom, right to freedom. In this, some rights are also given in this. Right to move freely in our Indian territory. You can adopt any occupation, free of speech and expressions. All types of rights are given in this. So this is called the democratic, where the no discrimination is practiced on any grounds, caste, gender, race, any ground. So this is called the democratic. Republic, what do you mean by it? Some students are confused whenever the question is there. What do you mean by republic? Okay, you tell me here that in our constitution, two heads are there. One is head is the constitutional head and the second is the state of the head. The government head of the country is Prime Minister. And overall we see that constitutional head or state head is President. And in our nation, the system is that we can say the President, we can say head of the state is not on the basis, it's not elected on the basis of hereditary, but it is elected through the election. It means republic. यानी हमारे देश में जो हेड है, जो स्टेट हेड है, उसका इलेक्शन होगा, वो किसी हेरिडिटरी बेस पे नहीं कि जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी कोई यूं कहा जाए कि फैमिली सक्सेशन के ऊपर जो है उसका इलेक्शन अपॉइंटमेंट हुआ है, नहीं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, ठीक है, उसका इलेक्शन होता है, और वो जो है उसका इलेक्शन इनडायरेक्टली वे में होता है, जिसमें एमएलएज और एमपीज वोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिपब्लिक। जस्टिस, व्हाट डू यू मीन बाय इट? यू आर आल्सो हियर अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सबको समान अधिकार, कानून के सामने सब बराबर हैं, whether the person is poor or rich, belong to the low caste or high caste, किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, जस्टिस सबको बराबर है, सबके लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर है, नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी ने भी क्राइम किया है, वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है,
उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा चाहे वो किसी भी रैंक पे क्यों ना हो. दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ. Second thing, if any condition is there who encroach your right, any institution or any person who encroach your rights, you can seek redressal in High Court and Supreme Court. Equality. आपको अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा जो है वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं. अगर आपके पास, आपने सुना भी होगा कि जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसके थ्रू अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका आप किसी के थ्रू भी लगवाते हैं तो उस पे जो है आपको सेफ गार्ड मिलता है. यहाँ तक कि अगर आप पुअर है तो गवर्नमेंट आपको जो है एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड कराएंगे. So this is the system, this is the justice. Liberty and freedom same. देखो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी ये चीजें साथ में होती हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. स्वतंत्रता है, देखो अगर इक्वालिटी समानता है तो उसके साथ स्वतंत्रता भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए. लिबर्टी इन ऑल स्फीयर्स. These liberty we can say are expressing the thoughts, just getting the education, and we can also adopt the any job, also forming the association, and all types of liberties are number of list is there. So liberty से मतलब क्या है? No, we can say that कोई ऐसा unwanted restriction नहीं होना चाहिए. Mean to say कि गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जिससे कि आपकी लिबर्टी क्या हो, एनक्रोच हो. एट दैट कंडीशन liberty means the people should enjoy their freedom equally. There will be no any another or unwanted restriction by the government. कोई गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, उस कंडीशन में लिबर्टी इक्वली सबको दी गई है. राइट्स आर गिवन टू देम, दे कैन एंजॉय देयर लिबर्टी, बट दिस लिबर्टी इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट. आप कानून को नहीं तोड़ सकते, आप उन रेगुलेशंस को नहीं तोड़ सकते जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो. ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है. इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर. इक्वालिटी, समानता की बात कर रहे हैं तो समानता किसमें? समानता सब जगह. जॉब में समानता, अपॉर्चुनिटी में समानता, एडमिशन में समानता, समाज के अंदर एक रेपुटेशन में, रिस्पेक्ट में समानता, किसी भी तरह का कोई सोशल बॉयकॉट नहीं, वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर. Yes, equality. I am just talking about equality of opportunity here because wealth is not distributed equally. क्या हम धन का बंटवारा एक साथ कर सकते हैं एक बराबर? नहीं कर सकते. उसका रीजन है द वेल्थ विच इज अर्न्ड बाय अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एफर्ट एंड क्वालिफिकेशन. एक पर्सन कितना प्रॉस्परस है, कितनी उसकी रैंकिंग है, एक पर्सन लेबर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना उसने एफर्ट किया है, उसके कितना टैलेंट है. हम बात कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज की, जहां पर सबको समान शिक्षा मिले, समान जो है अवसर मिले, लेकिन उसके दौरान हम चीजों को एक बराबर बांट नहीं सकते, हम चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स इन ऑल स्फीयर्स इक्वालिटी. इक्वालिटी बिफोर लॉ, equality in opportunity, equality in education, equality in status, equality in rank, and equality to access the resources. समाज में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली एक्सेस करना. फर्टिनिटी. फर्टिनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिनिटी? हिंदी में कहते हैं भाईचारा. You know that in India there is a diverse country, different religion group people, they reside together in India because we have fraternity. हमारे में भाईचारा है, तभी तो हम एक साथ रह रहे हैं. We should always understand that we are the members of the same family, same nation. तभी भाईचारा जो है, हम बात कर रहे हैं फर्टिनिटी की, वो तभी आ सकता है when we understand that we are the part of this nation. हम सब इस राष्ट्र के पार्ट हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, तब वो भाईचारा कायम रह सकता है. If we start to distinguish the people on the basis of religion, caste and all that,
the fertility cannot be bring. So this ideal or principle or value, it is included in an R principle for what? For to bring the fertility in our nation, especially in India, because number of different sections of people, they live together. So all these written are in our, this is the preamble, and these guiding values and principles are included for what? To inspire the constitution, to inspire the people of nation, to inspire the government to run the country. तो ये टॉपिक आज आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है. अब नेक्स्ट की बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इस पर्टिकुलर जो थीम है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इन इंडिया द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? इंस्टीट्यूशंस आर 3 organs. What are 3 organs? These are legislature, executive, and judiciary. These are called the organs of government. And you everybody know the country's work or functions, these are performed by all 3 organs. And it is written in our constitution. According to that, the institutional arrangements are in our constitution at that time. It was written in at that time that how the works or we can say functions of the government performed by these organs and how much power they will enjoy or not, all these things were written. Here institutional design we are just talking about. Here we know that legislature who form laws, policies. In short बता रही मैं आपको, executive implementation, यानी इन्होंने लॉज बनाए और इन्होंने इम्प्लीमेंट किए. और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी जो है सुपरवाइज करती है. जितने भी फंक्शंस हैं वो ये दोनों कंप्लीट करते हैं. और ओवरऑल जो जुडिशरी है इट इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इन दोनों के फंक्शंस formation of policies and law and implementation of these laws and policy, it is supervised by judiciary. Why? जुडिशरी क्यों करती है? जुडिशरी इसलिए करती है कि इन्होंने जो कानून बनाए और इन्होंने जो कानून को पालना कराई, क्या वो कानून के दायरे में है या कानून से बाहर. अगर ऐसा है कि इन्होंने कानून तोड़ा है तो जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि उसको नल एंड वॉइड कर सकती है. So that's why this institutional arrangements also in our constitution clear इनके वर्क का, फंक्शंस का जो है एरिया और लिमिटेशंस है. बस सबसे बड़ी बात क्या है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है. दिस इज द सिस्टम. सिस्टम क्या है? लेजिस्लेचर देखो, अगर हम थोड़ा सा आपको अलग और एक टॉपिक बता रहे हो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि एक दूसरे के ऊपर ये कंट्रोल कैसे करते हैं, इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. देखिए, लेजिस्लेचर जो है उसमें कौन लोग आते हैं? विच पीपल दे कंप्राइज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट हाउस मेंबर, दोनों हाउसेज है ना, राज्यसभा, लोकसभा, इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लेजिस्लेचर में आते हैं. फिर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ये सिस्टम है. अब आपको पता है कि यहाँ जो राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और इधर प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और पीएम
इन दोनों पे कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो सही मायने में देखें तो सारी पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो सारी पावर्स कौन यूज कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर यूज कर रहा है। बट प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि उनके फंक्शन से रिलेटेड वो रिपोर्ट ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस तरह से। राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल्स ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनपे आपने अगर पार्लियामेंट की मीटिंग्स देखी होगी तो उनसे तरह तरह के मोशंस होते हैं, क्वेश्चन आर होता है और बहुत सारे बीच बीच में इस तरह का, तो उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कंट्री के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो हमें मालूम है कि अभी फाइनेंस की कंडीशन क्या चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन देश की क्या चल रही है, तो टाइम टू टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं और फिर वो उनको जवाब देते हैं। तो यानी वो अपनी पावर को क्या है, एक आदमी होता है ना कि उसको सारी पावर दे दे और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है तो उसको डर ही नहीं रहेगा। अब उनको अपना काम कैसे करना होता है? अकॉर्डिंग टू द नेशन, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। उन पर पूरी नजर रखी, एक पैनी नजर रखी हुई, एक पैनी कंट्रोल रखा हुआ है, तो वो अपनी पावर्स को मिस यूज नहीं कर सकते। इन दिस वे वी सी दैट दे कंट्रोल ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इवन दे कंट्रोल ईच अदर। तो ये जो तरीका है ये हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे एक बात बताइए, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कल ही कराऊंगी, थोड़ा सा ही टॉपिक है, तो कल हम एक बार डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड